the race is not what everybody else is doing, I'll be doing the same thing. So this was never in my mind, never. ये तो क्लियर था कि भाई सिर्फ इसको वो नहीं बनाना कि अच्छा यार पैसे कमाने हैं वही अच्छा ये फैशन है तुम ये भी बना लो, कॉर्सेट चल रहा है कॉर्सेट ना, नहीं। ये था कि यार एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, जैसे एक पेंटिंग को आप देखते हो उसमें एक स्टोरी चल रही होती है। सो व्हाई नॉट आपके कपड़े जो हैं वो भी तो एक एक कैनवस है ना जो आपने पहना हुआ है, ठीक है। सो आपने जो कपड़े पहने हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को भी बता रहे हैं, आपको रिफ्लेक्ट करें कि अच्छा आप क्या हो सारा। तो मुझे ये था कि वो भी उस तरह के होने चाहिए। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another episode of Kabil Kahani. I'm your host, Waqas Hassan, and like always, it is my job to bring to you a story of a founder that is extremely passionate but also is courageous to turn their passion into a business. हर काबिल कहानी की एपिसोड की तरह इसके अंदर भी हम आज के फाउंडर की माइंडसेट्स समझेंगे, उनकी जर्नी से इंस्पायर होंगे. We'll celebrate her wins, learn from her struggles, and all, we'll deconstruct it so you can get inspired, get some insight, and inshallah, we'll be able to either launch or scale your business. Like everything, you can find this podcast on Kabil.school as well as on YouTube, as well as on Spotify, and in a case study format as well on Kabil.school. Without further ado, and a long rambling introduction as always, let me introduce somebody. And as I'm speaking, I'll also share a picture. March May, which was March 2025, in the Ramazan, there was an event in Lahore called Mashan, जहाँ पे बहुत ज़्यादा stalls थे. So I go through different stalls. And towards the end of my entire round, I came to Aska's stall. And every piece at a stall was a story in its own. And there was no two alike. अभी हमें नहीं पता उनका क्या मॉडल है वो हम देखेंगे. लेकिन at that time there were no two pieces alike because every piece had her soul in it. She is a designer. She's an artist. She is a entrepreneur. We will listen to her. उनकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है, वो अब क्या क्या करते हैं, and how else you guys can experience what she creates, whether it's digitally, whether it's in pop-up markets, whether it's on a website, store. We'll figure it all out. With that, Aska, welcome to the Kabil Kahani, and thank you for taking time out. Thank you so much, Vikas. Thank you for having me. And thank you so much for all the introduction and all the kind words. Aska, I was looking at your Instagram, and I will share as well with the audience as I'm speaking. And the first thing that caught my curiosity, let's say, is that long back, like I would say 5 years ago as well, I'm seeing you crafting these beautiful pieces. You're gonna see them on the screen right now. So these pieces are like, oh, look at that, what is happening, insane. These are like 4, 5, 6 years ago. So we'll start with this thing, and there's a backstory to it. I was in Philippines once in some entrepreneurial conference because I was running a course there. So there was this woman, and this I'm talking about long back, like 2013, 2014. She was designing the shoes like you do. Her name was Tal, Tal. And today, 10 years later, when I see Tal D. Guzman is her name, it's a huge brand. It's like, I don't even know how to say it. It's like HSY of Pakistan. She's a huge brand. She has these beautiful heels that are done so for a maximalist fashion. So I see where this journey, I've seen this journey in Philippines where like 10 years, how it panned out. So when I visited your stall and I looked at your Instagram, I see there's too much in your mind and you're putting that passion and then art in making this, every piece a very unique piece. So यहाँ पे बताओ कि what was going on, this जो हमने भी pictures देखी हैं, कब की pictures है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? अच्छा वकास, पहले तो लाइक यार आई एम सो ग्लैड कि जब आप एज अ डिजाइनर काम कर रहे हो तो ना द फियर इज कि मतलब कि किसको कोई रिलेट करेगा नहीं करेगा, किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं व्हेनेवर यू आर डूइंग, ठीक है। और जो आप ने अभी शेयर किया है ये कोविड के टाइम में था कि जॉब उस टाइम मेरी नहीं थी कोई, आई वाज डूइंग सम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन, और उसमें एक दो प्रोजेक्ट्स थे जिसके जो मैंने ये किए खुद से किए, एंड आई जस्ट पोस्टेड इट। और उसके बाद मैंने कहा कि हाँ ठीक है हो गया काम है सारा, बट लाइक कुछ लोगों ने मुझे, क्योंकि पब्लिक अकाउंट था, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार दिस इज लाइक रियली नाइस और इस तरह करके।
सो आई कीप ऑन डूइंग स्टफ फॉर पीपल, फ्रीलांस में करती रही, और आप खुद कभी रियलाइज नहीं करते कि अच्छा यार कि ठीक है कि आप कुछ अच्छा सही है, अच्छा है, मतलब आप, एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो मैं कभी अपने काम से बहुत ज्यादा जल्दी खुश नहीं होती, तो मैं ठीक है कर दिया हो गया, क्योंकि और इतना टैलेंट होता है कि आप कहते हो कि यार ठीक है, दिस इज जस्ट अनदर थिंग। और स्पेशली इन पाकिस्तान, यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, तो वहाँ पर तो लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा इतना समझ नहीं आता कि ये क्या है, ठीक है ना? उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि यार कमर्शियल वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है? इज़ इट प्रैक्टिकल? अच्छा दूसरा ब्रांड ये कर रहा है जो तुम कर रही हो, तो वहाँ पर फिर आप करते-करते आपको कहीं न कहीं उनके शेल में आना पड़ता है कि अच्छा यार, ठीक है, फिर मुझे एक स्पेसिफिक तरीके से ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये कोविड वाले टाइम का है सारा, और या दिस इज़ ऑल अबाउट दैट टाइम। असका स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने की कोशिश करते हैं. यूजुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देयर, बट स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम डिस्कवर करें, सो डज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जर्नी एज अ डिजाइनर स्टार्टेड विद व्हाट यू वर स्टडीइंग, वेयर वर यू स्टडीइंग, व्हाट वर यू स्टडीइंग, और वाज इट इवन बिफोर दैट और आफ्टर दैट? ओके, कुछ सो आता है माइंड? या बेसिकली हर देसी घराने में जो एक होता है कि या आप डॉक्टर बनेंगे या आप इंजीनियर बनेंगे, इसके अलावा आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं होती। और अगर आपने कुछ करना है, और अगर स्पेसिफिकली कोई आर्ट फील्ड है, तो फिर आप बड़े नालायक हो, ठीक है? ये एक हर देसी घर की स्टोरी है। आई थिंक मेरी जनरेशन के, अब खैर बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, आई थिंक अब पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट हो गई है, लेकिन जो मेरी जनरेशन के बच्चे हैं 90s और अर्ली 2000s में जो हमने पढ़ा सारा, आई थिंक सबके घरों में यही होता था कि मेरे फादर की पोस्टिंग हुई हुई थी मुल्तान, और मुल्तान में शायद कुछ एक ना हवा ऐसी है कि वहां पर हर अगला बंदा कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। तो डॉक्टर के लिए ये था एट दैट टाइम आपके पास, अच्छा ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स उस टाइम बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, स्पेशली लाहौर वगैरह में शायद फिर भी ये चीज़ बहुत वो थी, लेकिन मुल्तान में स्पेशली। और अगर आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का ये है कि आपको एंट्री टेस्ट देना है, और एंट्री टेस्ट के लिए आपको एफएससी का सारा सिलेबस उसका ही टेस्ट होता है। आपको ए लेवल्स विल नॉट वर्क देयर। अगर आपने ए लेवल्स कर भी लिया है, देन यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ द बुक्स दैट आर इंक्लूडिंग द एफएससी, क्योंकि सिलेबस सारा एंट्री टेस्ट का उसी के थ्रू आएगा, उसके ऊपर आएगा। अच्छा पहले तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आती थी ना कि लाइक कि इसका क्या रीजन क्या है, ठीक है? कि एक एडवांस स्टडीज हैं तो आपको एंट्री टेस्ट उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए, या आप दो एंट्री टेस्ट कर लो एफएससी के स्टूडेंट्स का अपना, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो। मतलब दिस वुड मेक मोर सेंस के बजाय कि ए लेवल्स करें बच्चे, पढ़ें, उसके बाद फिर वो एफएससी भी दोबारा से उनके वो कोर्स करें। खैर वो एक लंबी डिबेट और वो सारा कि अच्छा जी क्या करना है। आई वाज गुड विद मैथ्स, तो मैंने अपने फादर को कहा कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, आई वांट टू बी एन एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड ऑल। सो मेरे अब्बा ने कहा कि भाई ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी मेल डोमिनेटेड सी एक आपकी वो लाइन होगी आगे। सो आप मेडिकल रखो और वही करना है। मेरा मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मतलब आई वाज गुड लाइक लाइक स्टूडेंट, मैं अच्छी थी, लेकिन मैं स्टडीज में मैं अच्छी थी, लेकिन मुझे बायोलॉजी हमेशा लाइक कभी वो नहीं, मुझे आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, और मुझे बायोलॉजी हमेशा बहुत ज़्यादा ना बोरिंग लगती थी। तो लेकिन जब ऑप्शन एट दैट टाइम, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो दादा हैं, उन्होंने मेरे बाबा को कहा कि भाई ये क्या बात हुई, ये रूल मैंने तो तुम्हें पूरा चांस दिया था, जो मर्जी रखो, तो वो अब जो मर्जी उसको मैथ्स पढ़ने दो। बट लाइक मेरे अब्बा ने कहा नहीं जी मेडिकल करना है। खैर मेडिकल कर लिया, और मैं एक वो मतलब जब जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो वो पहला बैच मेरा था जिसमें एंट्री टेस्ट की डेट, वैसे एंट्री टेस्ट हमेशा अगस्त एंड सितंबर में होता था, हम मेरे बैच से ये हुआ कि जी जुलाई में यहाँ आपका एंट्री टेस्ट होगा। तो मैंने अपनी मामा को एक दिन आके कहा कि जी एफएससी में मैं पढ़ लूंगी, उसके बाद एंट्री टेस्ट दोबारा, आप खुद सोचे ना कि फर्स्ट ईयर दोबारा से सारी रिवाइज करनी है। और वो इतना अजीब और गरीब माहौल होता है, क्योंकि आपको जो टीचर्स भी जैसे आपको वो ट्रेन करते हैं ना कि भाई सब कुछ भूल जाओ, अपनी जिंदगी की और सारी एक्टिविटीज को छोड़ दो, अब आपने सिर्फ इन 2 सालों में पढ़ना है। ये जो एक आप मतलब ट्रेन करते हो ना बच्चों को, आधा बच्चा तो उसी टाइम ही ना डर के भाग जाता है कि भाई मैं किधर आ गया हूँ। तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन एफएससी, लेकिन जी अब आपने एंट्री टेस्ट देना है। वो अब वहां तक मैं बिल्कुल तंग पड़ गई थी कि भाई मैंने ये लाइक ये क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। फिर एंट्री टेस्ट में देखी आई, मुझे अभी भी याद है कि मैं आई हूँ और मैं बड़े मजे से लंच कर रही हूँ। मैंने मामा को बोला कि भाई मेरा तो नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैंने लिटरली लाइक मैंने सिर्फ क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई हुई थी, फ्रस्ट्रेटेड थी कि यार मैं बस थक गई हूँ,
और नहीं पढ़ा जा रहा कि जल्दी से सॉल्व किए ये नहीं, और अगले दिन मैं इस्लामाबाद अपने ननिहाल चली गई, बट छुट्टियां हो गई, मैं तो भाई इंजॉय कर वहाँ पर जी, आतिफ असलम के गाने लग रहे हैं, एनरिके इग्लेसियस के गाने लग रहे हैं सारा दिन, कि जी बड़ा अच्छा लगता है बच्ची का पेपर हो तो मैंने कहा नहीं, लाइक आई डोंट, मतलब मैं नहीं इसको। अच्छा फिर आया रिजल्ट और सारी चीजें हो गई कि जी नहीं हुआ, एफएससी के मार्क्स बहुत अच्छे थे, बट लेकिन उन्होंने परसेंटेज भी जो है एंट्री टेस्ट की ज्यादा रखी हुई थी। खैर, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, मतलब पहली दफा ऐसा था जिंदगी में कि मैं कभी, मेरे टेस्ट में भी बुरे मार्क्स आ रहे थे तो मैं बड़ा सैड, और जी वो जैसे लड़कियां हो जाती हैं कि भाई क्या नंबर कम आ गए, 99% आ गए, 90, मैं पहली दफा बड़ी खुश थी कि नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है कि नहीं क्लियर हो। तो अच्छा अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, वहां पर सारे जी रिपीट करवाओ इसे, इससे को दोबारा पूरा साल रिपीट करें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया भाई, मैंने पहला साल बहुत मुश्किल से, मैं अब दोबारा नहीं करूंगी। अच्छा, टेस्ट देना शुरू कर दिया। फादर वाज लाइक कि ठीक है यहाँ पर देख लो, कोई भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी कर लो। मैंने कहा नहीं, कुछ भी का नहीं, अब तक जो हुआ था दैट वाज लाइक टोटली आपके अकॉर्डिंगली मैंने किया था। अब जब सब चीजें खराब हो गई, नाउ लेट मी यू नो मेक थिंग्स बेटर फॉर मी, फॉर माई सेल्फ। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट जगह पे टेस्ट देना शुरू कर दिया। सो पहला टेस्ट मैंने एनसीए का, सबको एनसीए का पता था जी, अगर आपने आर्ट्स पढ़ना है या कुछ, आपको ये भी नहीं पता। अच्छा आर्ट्स, आई वाज गुड विद आर्ट्स, लेकिन आर्ट्स को क्योंकि हम लोग कभी सीरियस नहीं लेते ना, कि अच्छा यार अगर एक बच्चे का स्किल अच्छा है, इसको हम और देखते हैं कि इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इनको आर्ट क्लासेस में भेजो, उसको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये भी अच्छा ठीक है जी, फलानी ड्राइंग बड़ी अच्छी बना लेती है, चलो बात खत्म हो गई। तो या बहुत हो गया तो बर्थडे कार्ड्स बनवा लो, गिफ्ट रैप करा लो, ये काम होता है हमारे ना घर में, जिन जो मतलब जिन बच्चों की ये चीजें अच्छी होती हैं। तो खैर वहां से प्रोजेक्ट्स करवा लिया ये वो, वहाँ एनसीए का टेस्ट दिया, कुछ नहीं पता था क्या टेस्ट में आना है, ठीक है देख लिया ऑनलाइन ये चीजें हैं, ठीक है। मामा से कहा कि भाई कोई क्लासेस करवा दें, आर्ट क्लासेस ना, वहाँ पे कोई इतना वो नहीं, हो जाएगा ऐसे ही देख लेना ये वो, और बाबा तो दे दो एनसीए को, मैंने एनसीए में जाने नहीं देना। अच्छा लाहौर आई, लाहौर में एनसीए देख के बच्चों, मैं तो जितने बच्चे थे, और मैं तो देख के ना लाइक मैं तो घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। अब पहले दिन वो जब आपने लाइव ड्राइंग करनी होती है, अब सारे बच्चे पेंसिल पकड़ के ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लाइक लिटरली ऐसे ऐसे करके, और मैं उन्हें देख रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है ना। वो बेसिकली प्रोपोर्शंस आप लेते हो, क्योंकि कभी आर्ट क्लास गए नहीं, मतलब पता ही नहीं। और मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरी तो टोटल वो थी ना, अच्छा जी देख के बस बना लो, कुछ नहीं पता प्रोपोर्शंस में क्या ये वो। मैंने तो कहा भाई ये भी गई, मतलब एनसीए में तो नहीं होता, ठीक है वहां पर उनका पोर्टफोलियो और क्या था, मतलब ये। अच्छा फिर मुझे किसी कज़न ने कहा कि, या किसी फ्रेंड ने कहा कि यार इनका ना पिंडी कैंपस भी है, वहाँ कंपटीशन थोड़ा कम होता है, तो तुम पिंडी कैंपस में भी दो। वहाँ पे दे दिया। खैर कुछ अरसे बाद लेटर रिसीव हुआ है कि जी आपका पिंडी कैंपस में फाइन आर्ट्स में हो गया। और वो लेटर रिसीव किया मेरे फादर ने, तो कहते हैं ये एनसीए से लेटर आया है, तो जी पिंडी कैंपस में ना, तो मेरी मामा ने फौरन कहा कि पिंडी में ही है, लाहौर होता तो हम देख लेते। तो मेरे का नहीं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था आप 1 ईयर बाद ट्रांसफर कर सकते हो, लाइक इफ यू आर गुड विद द ग्रेड्स तो आप ट्रांसफर करा सकते हो। तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, मतलब एनसीए में नहीं हम जा रहे। खैर फिर कन्विंस किया कि देखते हैं, इंटरव्यू दिया, सारा कुछ हुआ। जब इंटरव्यू हो रहा था ना, तो इंटरव्यूअर ने मुझसे 2-3 ऐसे क्वेश्चंस किए जिसके ऊपर मैं भी कंफ्यूज थी। उसने कहा कि प्री मेडिकल में आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और आप बिल्कुल 360 डिग्री उल्टा जा रहे हो कि आर्ट्स में आप जा रहे हो। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे, और उस टाइम वकास वाकई आप इतने डिफरेंट इमोशंस में, आपको समझ ही नहीं आता कि यार ये क्या, वो जब आगे थे ना लाइफ गिव यू मेलन्स, क्या मतलब क्या क्या हो रहा है ये। तो आई थिंक मैंने बैलेंस का इट्स लेमन, सॉरी। तो खैर वो उस पॉइंट पे मुझे खुद भी नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है। फिर खैर उन्होंने कहा कि आप अपना टाइम लो, हम आपको वेटिंग लिस्ट पे रखते हैं, और अगर इफ यू वांट टू हम आपको कंसिडर करेंगे। लेकिन वो शायद आपका आपका देख लेते हैं ना कि आपका आपके स्टेट ऑफ माइंड से आए हुए हो, और हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, और अब क्या। और अगर एक बंदा खुद ही कंफ्यूज लग रहा है तो ऑब्वियसली वो फिर वहां पर, एनीवेज खैर फिर मैं, मुझे लग रहा था कि शायद एनसीए और फाइन आर्ट्स में मैं उन बच्चों के साथ compete नहीं क्योंकि जो पोर्टफोलियो था दैट वाज लाइक बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा फिर मुझे पीएचडी का पता चला। आई विजिट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन। मैंने आई डोंट नो किस तरह से मैं उस रिसर्च ही कर रही थी, तो मुझे उसका वेबसाइट का पता चला, मैंने देखा, सारा कुछ हुआ कि लाहौर में
मैंने अप्लाई कर दिया, टेस्ट की डेट आ गई। जिस दिन मैं टेस्ट देने के लिए आई हूँ तो वहाँ पर भी मैंने कहा कि यहाँ तो नहीं मेरा होगा, मुझे पता है यहाँ नहीं मेरा एडमिशन होगा। बच्चे देख के मतलब आप घबरा जाते हो ना, आप अपने आप को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो कि यार, और थ्रू आउट आपने मेडिकल पढ़ा है, लाइक साइंसेस पढ़ी तो आपको पता ही नहीं है कि क्या है डिज़ाइन, क्या व्हाट इज़ डिज़ाइन। आप थोड़ा बहुत जल्दी से पोर्टफोलियो एक महीने में जो बना सकती थी, ट्यूटोरियल्स देख देख के ड्राइंग सीख ली, ऐसे कर लिया, बेहतर कर ली। खैर टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। वहाँ पर भी वही क्वेश्चन कि मेडिकल में इतने मार्क्स अच्छे हैं तो फिर यहाँ पर क्या? मैंने कहा क्योंकि मैंने मेडिकल नहीं करना, ठीक है। सबने ये भी कहा मेरे फादर को कि तुम फाइनेंशियल एड पे जो आप करवाते हो ना, आप वो करा दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने अपने फादर को समझाया कि दिस इज ऑफ नो यूज, वी डोंट हैव हॉस्पिटल कि आपका हॉस्पिटल है मैंने जाके ज्वाइन कर लेना है कि अच्छा जी मैं अपने अब्बा की लेगेसी को आगे लेके जा रही हूँ। मैं एक मतलब क्या मैं करूंगी उसके डॉक्टर बन के भी। और फिर इफ यू आर नॉट पैशन, इट्स नॉट अबाउट, मैं कोई डिस्करेज नहीं करी स्टूडेंट्स को हु आर पैशनेट अबाउट मेडिकल, दे शुड डू दैट। बट द पॉइंट इज जिस भी चीज में आप पैशनेट हो आपको वही परस्यू करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही काम आता है आपके। करते करते पीएचडी आ गए और आई होप मैं इसको बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं कर रही। पीएचडी Uh, आ गई। you are a great storyteller with the details of emotions as well. जब आपका एक फेज में चल रहा होता है तो we तो loving it, everybody is loving it. आपको no constraints of time. तो, फिर उसके बाद फिर आई वेंट टू पीएफडी। पीएफडी में फाउंडेशन ईयर होता है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये लोग फाउंडेशन ईयर रखते हैं क्योंकि उसमें आपको बेसिक सिखाते हैं और उसके बाद यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इट्स नॉट कि इन अ हरी, क्योंकि बाहर आप आउटसाइड द डिजाइन इंस्टीट्यूट यू ऑलवेज थिंक दैट आई विल बी गोइंग टू द फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को पता ही नहीं है कि यार देयर आर सो मेनी अदर डिपार्टमेंट, सो मेनी अदर फील्ड्स जहाँ पर आई कैन गो। सो वो फिर आपको जब विजिट कराते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, देन I was there for textile design, honestly. तो and at that time जब हमने बहुत different departments visit किया है, मुझे लगा कि leather department ने मुझे बड़ा fascinate किया. So the degree is footwear and leather accessories and footwear design department. And I was like कि मैंने तो leather department में जाना. So फिर वहाँ से मैं leather department में गई, वहाँ से हम फिर वही जो आपके रिश्तेदार, अच्छा जी आप तो मोची बन रही हो ना, फिर मोची बन तो डिजाइनर बन जाओ, तो आप दर्जी हो जाते हो, आप मोची हो जाते हो, तो ये चीजें होती हैं। मुझे अभी भी याद है वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी एक दफा मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरा एक दोस्त है, वो भी बाय द वे डॉक्टर ही थे, उन्होंने अपनी बेटी को कराना है ये आप वाली यूनिवर्सिटी में, तो जरा मुझे फीस स्ट्रक्चर शेयर करना। मैंने उनके साथ शेयर किया तो उनका पहला कमेंट ये था, इस तरह की भी पढ़ाइयों पे इतना पैसा लगता है। और मैं 2 मिनट के लिए मैंने कहा यार मैं कुछ कह सकती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ? फिर आई थॉट कि नहीं यार, जब तक आप उस जगह पे नहीं होते, मे बी शायद उनका कसूर नहीं है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ें ग्रेजुअली आपकी सोसाइटी के अंदर इनकलकेट होती हैं। ऑब्वियसली वो शायद जिस एनवायरनमेंट में वो लोग बड़े हुए हैं, उन्होंने सिर्फ डॉक्टर ही देखे हैं। तो चीज़ें बहुत इस तरह से आपको डिस्करेज बहुत करते हैं लोग, शायद इंटेंशनली नहीं भी कर रहे होते, लाइक उनका इंटेंशन ये नहीं होता, लेकिन वो इतनी हर्टफुल चीज़ होती है और आपको हर पॉइंट पे लगता है कि शायद मेरा डिसीजन गलत था, मे बी आई एम रॉन्ग, शायद मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, कि मेरा फलाना जो कज़न है वो ये कर रहा है, वो डॉक्टर बन रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, वो डेंटिस्ट। मतलब एक पॉइंट में मुझे अभी भी याद है मेडिकल वाले टाइम पे मैंने अपने आप को कन्विंस किया, क्योंकि मैं डेंटिस्ट के बाद मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे, कि हाँ नहीं मुझे बीडीएस शायद अच्छा लगता है। लाइक आई वाज मेकिंग अप अ माइंड कि चलो मैं एमबीबीएस नहीं करूंगी, मैं बीडीएस कर लूंगी। मुझे देखो मुझे वो टूल कितना फैसिनेट किया था, मैं अपने आप को ना प्रिपेयर कर रही थी कि अच्छा यार मेडिकल ही अगर मेरा आखिरी आरामगाह है तो चलो मे बी बीडीएस कर लेते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग रॉन्ग और ये चीजें चेंज करनी चाहिए और आपको अपने स्किल्स को देखना चाहिए। सो अच्छा, वहां से एक तो आई हैव टू आस्क कि जो बिंदास स्टोरी टेलिंग का स्किल है, दिस वाज इन द लेट टीन्स एंड अर्ली 20s व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ योर लाइफ एज वेल, कि ये इन रेट्रोस्पेक्ट लुकिंग एट द लाइफ स्टोरी जब आई थिंक उसको बनता जा रहा है। आई थिंक उस टाइम भी थोड़ा बहुत था, ठीक है, क्योंकि माई फादर इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, ठीक है। और दूसरा ये कि उस टाइम ऑब्वियसली कोई भी पूछता था तो आई वॉज नेवर शाई ऑफ टेलिंग माई स्टोरी या मतलब ऑब्वियसली यू डोंट एक्चुअली टेल कि अच्छा यार मेरा दिमाग अभी किस फेज से जा रहा है, क्योंकि वो अब चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि अच्छा आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। उस पॉइंट पे आपको पता नहीं होता कि आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है।
और लेकिन हाँ, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आई एम टेलिंग कि हाँ यार, उस टाइम मुझे वाकई लगता था कि शायद मे बी मैं कोई बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ कि मैं आर्ट्स कॉलेज में आ गई, मैं डिजाइन कॉलेज में आ गई, या जो भी। अब लोग, व्हेन पीपल से कि नहीं, वी आर प्राउड ऑफ यू, हम बताते हैं तुम्हारा। सो ये जो टर्न, वही वाले फिर अब रिलेटिव्स भी थोड़ा सा जरा हो जाते हैं कि अच्छा यार, मतलब, और इतनी नेम चीजें लेके आपके पास आपके रिलेटिव्स आते हैं कि लेदर में, तुम्हें पता है चमड़े की कितनी स्मेल होती है। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि यार लेदर की टाइप्स कितनी है, लेदर बैग्स, जिन बैग्स के पीछे यही खवातीन क्रेजी हो रही होती हैं, ठीक है, बाहर से मंगवा रही होती हैं, डिजाइनर बैग्स ले रही होती हैं, कि उसके पीछे क्या प्रोसेस है, क्या वो सारा। तो खैर ये सारा भी स्टोरी थी। To place it in the timeline for the या viewers, ये हम roughly 2010 2015 के आसपास का ये फेज चल रहा है, और your PIFT years roughly. इस 2011 से 2015 में मैंने ग्रेजुएट कर लिया था। Yeah, so ये इस फेज का पाकिस्तान, we can now imagine this phase Pakistan. Aska, very a curious mind wants to know a bit as well कि इस सारे फेज के अंदर the dopamine hit, the winning feeling कि यार कुछ तो सही हो रहा है, वो कहाँ कहाँ से आ रही थी, कहाँ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था कि यार ये डिसीजन अच्छा हो गया है, या ये भी ठीक है, कि ज्यादातर बस एक कियोस ही था और उस कियोस के अंदर टाइम गुजरता जा रहा था, एंड ओनली लुकिंग बैकवर्ड्स सम डॉट्स हैव बीन कनेक्टेड, या उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस आ जाता था? अच्छा वकास, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक अगेन एक और चीज हमारे ना, देसी फैमिलीज में एक और चीज भी होती है कि एप्रिसिएशन आपको बड़ी कम मिलती है, ठीक है, कंपैरिजन बहुत होता है, फलाने का बच्चा देखे वो इसमें बड़ा। तो उस सीन में क्या होता है कि मेरे अंदर एक चीज ये बहुत है कि मैं ना, आई बिकेम अ वेरी pessimist person. I'm not very optimistic person in terms of like achieving things. अच्छा मैंने कुछ ले लिया, मतलब उसमें भी मैं ना, मतलब मेरे हस्बैंड ये भी कहते हैं कि यार हर अच्छी चीज में ना अस्का ने हमेशा वो चीज निकाली कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, यू नो। तो वो मुझे लगता है कि कहीं अंदर जो आपका खौफ होता है ना, एक अंदर डीप डाउन यू हैव एन इनसिक्योरिटी, या कोई एक डर होता है कोई चीज लूज कर देने का, वो रहता है हमेशा, इवन अब भी, ठीक है। सो देयर आर टाइम्स, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि जब अचीवमेंट्स होती हैं सारा होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो बहुत कम मोमेंट है मेरे पास, बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, वेरी ब्रीफ ब्रीफ मोमेंट। लेकिन ये कि जो दूसरी चीजें हैं कि अच्छा यार अब क्या करना है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा अब ये हो गया, अब इसके आगे क्या होगा। सो वो चलता रहता है। आई थिंक वो अच्छी चीज भी है कि मैं लाइक आई इट कीप्स मी ग्राउंडेड, ठीक है। मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट आई थिंक उस तरह से नहीं होती, क्योंकि मुझे हमेशा एक डर रहता है। सो आई एम ऑलवेज लाइक नहीं यार, अच्छा ठीक है अब ये हो गया, लेकिन इसका दूसरी चीजें भी देखनी है कि इसका क्या है। तो वो है। लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारे मोमेंट्स में आपका मेरी जब फर्स्ट जॉब हुई, फर्स्ट जॉब वाज लाइक अगेन, मैं इवन आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मैं आई एम द जूरी मेंबर ऑफ पीएफटी पैनल, उसमें मैं हर साल जाती हूँ, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स से ये बात जरूर करती हूँ कि यार जॉब करना ठीक है, मतलब आप करो, आप सीखते हो, सारा कुछ है, और इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी कि आप पैसे क्या कमा रहे हो, ठीक है। मेरी पहली जॉब मेरा ख्याल है 15,000 की थी या 20,000 की थी, ठीक है। मैं फ्रीलांस था, 3 दिन के लिए मैं जाती थी। और अब लाहौरीज को पता होगा कि गुज्जू माता किस जगह पे है, किस जगह गुज्जू माता जो है, मैं वहां पर जाती होती थी। और मेरी अच्छा, और मतलब मैं, मुझे कुछ नहीं बचता, क्योंकि ट्रैवलिंग ही आपकी इतनी ज्यादा है कि आप अपना कल उसके ऊपर करो। तो बट इट वाज कि हाँ, लर्निंग प्रोसेस था कि हाँ, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे बॉसेस भी सही मिले अब तक के, लाइक उनको उनको ये आइडिया हो जाता था पहली मोमेंट में कि यार कुछ है स्पार्क, और दे ऑलवेज लेट मी डू कि अच्छा तुम अपना कुछ करती रहो। मतलब मुझे, मतलब अगर मुझे होता था ना कि अब मैं जॉब छोड़ी हूँ क्योंकि मैंने अब अपना स्टार्ट करना है, तो दे वर लाइक अच्छा अपना कर लो साथ, बट जॉब ना छोड़ो। 2017 में मैंने, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू डू सम स्मॉल पॉपअप्स के, यूनिवर्सिटी के टाइम पे लेदर बैग्स बनाए, छोटा सा एग्जीबिशन रखा, सारे रिलेटिव्स को बुलाया कि आए, आके बाय करें, और सारा, मतलब ये चीज मैं करती रहती थी। और 2017 में भी फिर किया, तो बीच में जॉब, बीच में ये, और And what were these jobs like? Uspe they were with some fashion brands.
Yeah, one was with fashion footwear brand जो मेरा काफी like जिनके साथ मैं ऑफ एंड ऑन काम भी करती रही, and my last position जिससे मैंने रिजाइन किया था, that was creative director. I was creative director of a footwear brand. लेकिन somehow obviously आपको ये फील हो जाता है कि, और मैंने साथ ही अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर लिया था. सो अगेन माय बॉस वाज लाइक कूल इनफ कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप साथ में कर लो, कोई इशू नहीं है. लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि इवन आप किसी भी बड़ी पोजीशन पे हो, किसी और के विजन के अंदर आप एक हद तक चीजें चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू आर इन समबडी एल्सेस स्टोरी. ठीक है, यू आर नॉट इन योर स्टोरी. Wow, what a way अपनी to, आप what a अपनी beautiful way to put it. I just want to highlight this because this is such beautiful way you have described it, that you are basically making someone else's story coming yeah, true. yeah. You're in someone else's story. This is insane. Yeah. So, so you don't have much option to edit or erase things from their and all. और उसमें यही होता था कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम, मैं सब कुछ डिजिटली आइडिएशन करके सब कुछ बना के उनके पास, समटाइम्स आई यूज टू मेक प्रोटोटाइप्स कि यार ये ऐसा होगा फाइनल, ताकि वो कन्विंस हो जाए. लेकिन मुझे लगता था कि वो कन्विंसिंग, और उसमें भी ये होता है ना कि पूरी सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो सब डिपार्टमेंट्स को खुश करना, लाइक उनके डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं. समटाइम्स मे बी बिकॉज ऑफ जेलेसी, समटाइम्स मे बी किसी और चीज की वजह से, और हो सकता है वो कुछ चीजों में सही भी होते हैं, क्योंकि कमर्शियल ब्रांड्स एक सर्टेन वे में चलते हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली अगर वो मिलियंस और बिलियंस कमा रहे हैं तो वो ये कहेंगे कि यार इसके आइडिया से क्या ही हो जाएगा. तो वो चीजें कुछ इम्प्लीमेंट भी होती थी, और जब इम्प्लीमेंट होती थी तो बहुत खुशी होती थी कि किसी की ब्रांडिंग की या लोगो डिजाइन किया, और वो लोगो अब लगा हुआ है, तो अच्छा यार उसको बताया कि यार ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी उसके लिए सारा, और वो अप्रिशिएट भी करते थे सारा कुछ ये. लेकिन उसमें मुझे यही लगता था कि मेरी एनर्जी बहुत, लाइक आई यूज्ड टू ड्रेन आउट. Right. क्या कि यार उसको कन्विंस करो, उसको कन्विंस करो, उससे फटा करो, उससे, लेकिन यार ये बहुत ज्यादा हो गया. मैं लेकिन अपने उसमें वकाल मतलब लिटरली लाइक अभी मैं उस पॉइंट में हूँ कि बहुत मुश्किल से ब्रेक इवन होता है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर अभी भी, एंड आई नो देयर साइड ऑफ स्टोरी, कि भाई ऑब्वियसली उनको पता नहीं है या उनको आदत नहीं है कि अच्छा एक स्टार्टअप ब्रांड है, वो कि उसकी क्या रास्ता है, वो एक बहुत रफ पैथ से हो क्या है, वो प्रोडक्शन नहीं करा रहा, उसके एमओक्यूज बहुत बड़े बड़े नहीं है कि उसको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीस बनाने हैं जिसके ऊपर उसको शायद मुश्किल से ब्रेक इवन होता होगा. ठीक है, या बाज़ का नहीं भी ब्रेक इवन होता. सिर्फ ये होता है कि अच्छा यार चलो यू गेट टू नो अबाउट द कंज्यूमर, आप उन अच्छी प्राइस देते हो, सही प्राइस. लेकिन कुछ पीस जिसमें आप कट्योर पीसेस ही होते हैं वो, जिसमें आप एक एक आपको चीज बताया कि यार इसमें स्टोरी चल रही है, इसमें आर्ट चल रहा है, और उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आई टेल कि मैंने किस तरह से ये डिवीजन की हुई है अपनी. Absolutely. तो वो बस ये पॉइंट था कि मैंने कहा कि नहीं यार आई शुड बी डूइंग माय ओन. तो ठीक है, कंज्यूमर को आपको कन्विंस, बहुत मेरे पेरेंट्स ने बहुत कहा कि देख लो बहुत मुश्किल चीज़ है, जॉब में एक प्रोटोकॉल है, अच्छी पोजीशन पे हो, सारा कुछ है, बट लेकिन फिर मतलब मैं करती थी 6 महीने की, फिर कहीं ना कहीं एक सेटबैक आता था कि नहीं यार मतलब Yeah. कुछ The the inner voice just kept you restless a lot. कि ये तो एक वॉइस है, वो नहीं चुप हो रही. तो जब तक वो नहीं चुप होती, कैन सब subdue it for कितने सालों के लिए, 2-4 साल के लिए, लेकिन eventually it just becomes too loud. Yeah. But असका इस फेज में, the PIFT phase and post PIFT the job phase, उसके अंदर वो जो बाकी voices थी about के कुछ और भी शायद कर सकते थे, मेडिकल कर सकते थे, whatever whatever, वो सारी बिल्कुल forever खत्म हो गई, और अपना पैशन नजर आ गया कि यार ये तो मेरी सही कॉलिंग है, मैं तो मतलब इस फील्ड के लिए हूँ. वो आ गया था, वो टर्निंग पॉइंट आ गया था. हाँ, वो मतलब पीएचडी में मुझे कोई एक दिन ऐसे नहीं था जो मुझे रिग्रेट हुआ हो कि आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, या बिकॉज मुझे मुझे पता था मैं मेडिकल नहीं कर सकती. ये तो मुझे बिल्कुल, एवरीबडी इज नॉट मेंट फॉर एवरीथिंग ना. तो आपको पता होता है कि यार आई एम गुड विद आर्ट्स, आई एम गुड विद डिजाइन, एंड आई वाज ऑलवेज वेरी मच इनटू स्टाइलिंग क्लोथिंग शुरू से. When I was like 2 or 3 years old, my father was like कि यार मैं एक दिन आया हूँ और तुम रो रही हो, और मैंने कहा कि क्या हुआ, तो तुम खड़ी हुई हो कि ये मामा ने ये टॉप इस जीन्स के साथ, ये आप मुझे बताएं कि इसके साथ मैच हो रहा है. ठीक है, तो ये आपके ना इनबॉर्न ही होता है, मतलब ये Oh चीज wow. Oh wow. A lot of times,
people who go through our programs as well, they're like, यार ये मेरे को नहीं पता मेरा पैशन क्या है, हम पैशन के बारे में पता कैसे करते हैं? एंड वी टेल देम दे कोई दुनिया में रेसिपी नहीं बनी, देयर इज नो रेसिपी टू फाइंड आउट कि आपका पैशन, वो इन्हीं स्टोरी से पता चलता है कि आपका पैशन क्या है, कि एवरीबडी इज बॉर्न विद समथिंग जिसके अंदर if it is not done in that way, or if they then it will irritate them in ways, it will be a full body experience. और किसी के पास सैटरडे संडे होगा, वो उस सर्टन चीज के अंदर रिचार्ज फील कर रहा होगा कि शुक्र है सैटरडे आया, मैं ये चीज पढ़ के या ये करके थोड़ा सा रिचार्ज फील करो. तो पैशन इज ऑलवेज हैंगिंग अराउंड इन आवर लाइव्स in those pockets that we are operating at a subconscious mind. Yeah. So कब छोड़ी फिर? Which was the year that you left the job, and what was the first of the was it also called Askas के कुछ और था, or what was that story like? So my first brand was like in 2017. I started off with like Vestige by Aska, and उसके बाद then in 2017 उसके बाद फिर वही लेदर बैग्स थे, सारा कुछ एक एग्जीबिशन किया बहुत अच्छी जगह पे लाहौर FPL लाउंज में किया सारा कुछ. बट आई फेल्ट कि नहीं, लेदर मार्केट, क्योंकि लेदर इज अ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल एंड उसमें आपको, और द कंज्यूमर वाज नॉट रेडी, कि उसको मैं कन्विंस नहीं कर पाई कि यार ये आप क्या ले रहे हो, ठीक है. सो मैं उस टाइम बड़ा डिसहार्ट हो गई कि यार ये तो सीन बैड है. तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अच्छा देखूंगी, ऑर्डर्स आए, किया, अच्छा फिर मैं पीछे हो गई. फिर जॉब, फिर वही करते करते फिर इन 2023 आई थिंक 23 में, आई डोंट नो कि क्या हुआ था, कि मैंने फिर दोबारा से कहा कि नहीं, and this time I'm coming up with my own name and I don't want to stuck with just one thing, bags, because again bags are like accessories, ठीक है. और and I was like, yeah, I really like clothes, ठीक है. तो कपड़ों, मतलब I like wearing good clothes, it makes me happy, और मैं शॉपिंग करती हूँ, मुझे बहुत, it's my therapy. मतलब no matter how much tired I am, मतलब मैं, अगर आप मुझे कहोगे कि अच्छा यार शॉपिंग कर लो जाके, it's not just कि अच्छा आपने फिजिकल जाके कपड़े खरीदने हैं, मुझे एक विंडो शॉपिंग भी मैं कर लूँ ना, तो मैं उससे जरा फ्रेश हो जाती हूँ. तो इट मीन्स कि अच्छे कपड़े देख के आप खुश होते हो. तो मुझे ये था कि व्हाई नॉट यार, क्लोथ्स आप करो और सारा कुछ. और वहां पर भी जो बड़े ब्रांड्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छे उसके साथ, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रूट्स छोड़ दी. अब कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है, ये वो उनको भी मैं डिस्कस करती थी कि यार इसमें वो चीज अब खत्म होगी, इस ब्रांड ने वो. तो फिर मुझे हुआ कि यार वहाँ ठीक है, मतलब मुझे समझ है थोड़ी बहुत, तो मतलब मैं डर क्यों रही हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, ठीक है. हालांकि हमारी ग्रूमिंग PFD में ऐसी होती है कि हम किसी भी फील्ड को परसू कर सकते हैं, कोई वो मसला नहीं है. लाइक हम लोगों ने वहां पर हमारा प्रॉपर 3rd ईयर में या 2nd ईयर में आई थिंक होता है, जिसमें आप पूरे अपैरल्स पढ़ते हो, ठीक है. तो यू कैन बी एनीथिंग. आप एज अ मार्केटर भी काम कर सकते हो, और एज अ लेदर डिजाइनर, एज अ एक्सेसरी डिजाइनर, फुटवेयर डिजाइनर, कुछ भी आप कर सकते हो. तो फिर जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, और यही था कि स्टार्ट में आपको यू लर्न अबाउट थिंग्स, क्योंकि मुझे सर्फेसेस और उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नहीं पता था. मैंने एक इंटर्नी को हायर किया, टेक्सटाइल डिज़ाइनर को. फिर मैंने उसको अपने साथ उसके साथ मैंने आइडिएशन शेयर की कि क्या मैं सोच रही हूँ, किस तरह से हमने स्केचेस बनाने हैं, एलिमेंट्स चेक कैसे, उसको मैंने बताया सारा, एंड उसने फिर मुझे सारा उसका पैटर्न्स और चीज़ें वो करके दिया. वो it turned out to be good, वो जो कोट्स और सारा कुछ, वो 23 में. Right. So 20, the first of these quotes that we experienced at Mashan in 2025 were actually getting started in 2023. 23, yeah. 23. तो उसके बाद इस like जी. Sorry to interrupt, इस पे एक follow-up question भी बन रहा था, mind में आता है कि now that you know fashion, you know apparel, तो when choosing whether bags or accessories या footwear या wearables clothes, within that coats और jackets और shirts और pants, ये इतना बड़ा market बन जाता है. तो is there a rubric in your mind that goes on either like very subconsciously or consciously where you understood कि यार कहाँ पे consumer demand ज़्यादा होगी थोड़ी for my kind of products? You're talking about particularly the clothes or overall? Particularly 2023 में जब जैकेट पे आ गए, तो तब तक what any data that goes in your mind or you actively search for कि बिल्कुल ही जो gut feeling आ रही है उसको बस pursue कर लिया?
अच्छा, एक तो पॉइंट ये था कि the race is not what everybody else is doing, I'll be doing the same thing. So this was never in my mind, never. ये तो क्लियर था कि भाई सिर्फ इसको वो नहीं बनाना कि अच्छा यार पैसे कमाने हैं, वही अच्छा ये फैशन है तुम ये भी बना लो, कॉर्सेट चल रहे हैं कॉर्सेट ना, नहीं। ये था कि यार एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, जैसे एक पेंटिंग को आप देखते हो उसमें एक स्टोरी चल रही होती है। सो व्हाई नॉट आपके कपड़े जो हैं वो भी तो एक एक कैनवस है ना जो आपने पहना हुआ है, ठीक है। सो आपने जो कपड़े पहने हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को भी बता रहे हैं, आपको रिफ्लेक्ट करें कि अच्छा आप क्या हो सारा। तो मुझे ये था कि वो भी उस तरह के होने चाहिए कि आपने पहना हो। और इट्स नॉट कि मैंने सारी कोई बहुत फिलोसॉफिकल कपड़े मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं कुछ ऐसा। आई मेक सिंपलर क्लोथ्स, आई मेक बेसिक क्लोथ्स फॉर एवरीबडी बिकॉज आई डोंट वांट कि फैशन में अगर मेरा कोई वहां पर कस्टमर आ रहा है और उसको कुछ नहीं मिल रहा, देयर आर पीपल हु डोंट वांट सो मच हैपनिंग कि बहुत ज्यादा कुछ कपड़ों पे हो रहा है सारा कुछ। आई ट्राई टू मेक थिंग्स जो अच्छे कट लाइंस हो, जो मेरे बेसिक लाइंस में। लेकिन आई डोंट वांट टू ever lose this thing because I like putting elements on and I like creating stories on my canvas. And I am not an artist, I am a designer, and my canvas is my fabric, my clothes. So this is how I work for my collections. जब 2023 आ रहा था, and what were the first piece, the quantity wise, or what were the pieces that you designed? You're like, isse, if the Aska's brand name is gonna get launched, what should it be the launch with? What was the launch collection like? अच्छा, so उस टाइम विकास एक तो द मोर आई स्टडी अबाउट के बिजनेस और सारा इसमें आई थिंक कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, खासतौर पर अगर आप एक कोई फैशन ब्रांड है, अपैरल ब्रांड है, यू हैव टू हैव योर डीएनए इन योर, आपका अपना डीएनए का कुछ पार्ट आपके ब्रांड में होना चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू रेजोनेट। और जब तक आपकी स्टोरीज रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी ना आपके कपड़ों में, तो शायद उसको कंज्यूमर भी उस तरह से रिलेट नहीं करेगा, ठीक है, अगर मैं अपने कपड़ों को रिलेट नहीं कर सकती। सो ये चीज तो बिल्कुल अंडरस्टूड थी कि क्या है। उस टाइम फ्लड आया था, जिस तरह अभी सैडली बहुत बुरा एक फ्लड का जो नॉर्दर्न एरियाज में है, तब भी बहुत बुरा फ्लड आया था 23 में। सो एंड दैट पिक्चर्स यूज्ड टू हॉन्ट मी एट दैट टाइम कि किस तरह पूरे पूरे घर और वो सारे हो गए। तो आई पिक्ड अप टू थ्री आई थिंक मैंने थीम्स पकड़ी थी। उसमें एक था लाइक कि सबसे ज्यादा इन सिचुएशन में बच्चा एक बच्चे के ऊपर क्या वो होता है, ठीक है, क्योंकि यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज है या ये हो गया या इस तरह हो गया। और सेम गोज फॉर जो अभी पैलेस्टीन में हो रहा है कि आप बच्चों को ये नहीं बता सकते कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट दोज किड्स कि हमने उनका सोचना है या उनका देखना है। सो द स्टोरीज वो जो थीम मैंने पिक की वो ये थी कि जी चाइल्डहुड फैंटेसीज क्या है, ठीक है। एक बच्चा जो वहां पर गिलगित में, नॉर्दर्न एरियाज में, चित्राल में वहां पर है, उसकी मेमोरीज, उसकी पूरी वो जहां पर वो रहता था, और वो अगले दिन देख रहा है कि यार हर चीज डिमोलिश खत्म है, ठीक है, देयर इज डिस्ट्रक्शन। उसके पेरेंट्स उसको क्या कन्वे करेंगे, वो क्या सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। सो बेसिकली उन्हीं की बिल्डिंग्स और उन्हीं की चीजों को जो फ्लड, द वेव्स एंड ऑल, वो सारी चीजें, ठीक है, जिस तरह से मैं कम्युनिकेट कर सकती थी थ्रू ड्राइंग्स। एंड द अदर वन वाज, मुझे याद है कि बचपन में मेला जो लगता था, द कार्निवल्स जो छोटे छोटे लगते थे, वो मुझे एक बहुत अजीब एक मुझे उससे फील होता था कि मतलब वो आपको एक हैप्पी भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना एक उसकी एक मिस्ट्री है, ठीक है। द क्लाउन्स डांसिंग जो हमेशा हमें मतलब पेरेंट्स डराते थे कि देखा है वो, पर वो बेचारा एक इतना अपने अंदर एक वो सैड पर्सनैलिटी होती है जो वो क्लाउन बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि सड़कों पे जो गोल्डन मैन और ये सारे हैं, कहते हैं कि यार पता नहीं किस स्ट्रगल के साथ इतना ज्यादा पेंट करके वहां पर खड़े हुए हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारे घर के पास वो लगता था, and जब भी हम वहां से गुजरते थे उनको देख के डर जाते थे कि अच्छा क्या है। और वो और ये बड़ा सुना हुआ था कि जी बच्चे गुम जाते हैं वहां पर, सही है। तो एक वो मिस्ट्री जो चल रही होती है ना उस कार्निवल के अंदर, ठीक है, वो एक बड़ा फैसिनेट करती थी। तो एक वो पिक किया, और एक फॉरेस्ट जंगल, ठीक है, जो नेचर इंस्पायर्ड। तो ये तीन डिफरेंट थे, जिस हर थीम के ऊपर दो दो पीस बने थे। तो
Yeah, Okay, so a 6 piece launch, and each piece is a two and in for I know ये थोड़ा सा आपकी दुनिया में लोगों को इजी लगता होगा, लेकिन पहले ये पेपर पे बनते हैं, फिर ये कपड़े पे आते हैं कि इसी ये आपका पहले माइंड आप, और कपड़े पे आने के लिए यू डू इट योरसेल्फ, सो ऑल द स्किल्स ऑफ पुटिंग देम ऑन द क्लोथ्स एज वेल, कि नहीं फिर अड्डे पे किसी को हायर करना होता है? बेसिकली ये होता है कि आप जो पहला उसमें था, उसमें तो लाइक बिल्कुल ही वो था कि आप सबसे पहले मेरे लिए इजी ये होता है कि मैं उसकी इलस्ट्रेशंस बना लूँ, ठीक है? राइट। आइदर ऑन ऑन प्रोक्रिएट के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर, तो वो मेरे लिए लाइक इट्स ऑलवेज ईजियर फॉर मी कि अच्छा आपने जल्दी से ड्रॉ किया, उसमें कलर्स पुट किए, व्हाटएवर द एलिमेंट्स आई वांट वो सारा करके, ताकि इजी हो जाए। उसके बाद फिर ये कि आप अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैटर्न बनवाना है, देन आई हैव टू हैव स्किल्ड पर्सन जिसको मैं अपने एलिमेंट्स सारे शेयर करती हूँ कि यार ये एंड आई वांट टू यूज पोकर कार्ड्स, these are the cards I want to use, these are the dice I want to use, these are the वाह। animal faces I want to use। फिर उस ड्राइंग को हम थोड़ा सा रिफाइन करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये हमें क्या इसका इमोशन क्या है, ये क्या चीज शो कर रहा है। दैट्स व्हाई these pieces takes a lot of time because Yeah, there's I know, can even understand. उसके बाद फिर लाइक अच्छा अब अगर ये थ्रेड है, ये थ्रेड अगर आपने किसी को फर शो करनी है, कुछ आपने स्पाइकी शो करना, हम ये टांका लगाएंगे, इसमें ये टांका आएगा, हम इसके अंदर तार ये वाली इस्तेमाल करेंगे, तो उन फिर आप धागों से प्ले करते हो इमोशंस को शो करने के लिए, ठीक है? दिस इज हाउ यू क्रिएट टेक्सचर्स ना, तो वहां पर भी एक अलग प्रोसेस है। और ये सारा जो प्रोसेस है, दे रिक्वायर डिफरेंट स्किल्ड पीपल, और वन पर्सन अस्का इज एबल टू प्रीटी मच डू मोस्ट ऑफ इट? I always have obviously my labor for the help, और जो आपने अगर पैटर्न मेकिंग है, I do have internees for from the like the textiles का या उधर का internees होते हैं, लेकिन इन सब को चीजें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो लाइक चीजें इन सेंस कि अच्छा एलिमेंट्स है वो मेरी तरफ से जा रहे हैं, आई वांट किस तरह की कलर पैलेट होगी, आई वांट किस तरह का, दैट इज व्हाई आई एम अ बिट डिफिकल्ट टू वर्क विद, बिकॉज राइट। जो एक कीड़ा है ना कि अच्छा यार इस ये यही हाँ। मूड, जो वो मूड अगर क्रिएट नहीं हो रहा ना, इवन अब मेरे अड्डे वाले या जो लेबर है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वो जो लेबर के साथ काम करना है ना, उनके मूड स्विंग्स, उनको वो कहते थे, मतलब वो मेरे काम से भागते हैं, वो कहते हैं कमर्शियल काम लेके आओ, पूरे पूरे आपको लेंगे, तैयार कर देंगे बाजी, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये क्या काम है, ये क्या है, ठीक है? फिर उनको ऑब्वियसली आपने उनको बताना है कि यार ये इतना आपने टांका इस धागे से बनाना है, यहाँ पर मूड चेंज हो रहा है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर अब टांका आई चेंज कैन हो रहा है। अंडरस्टैंड। सो वहां पर, और ये चीजें आपकी कॉस्ट भी ऐड करती हैं, या बिकॉज वो रुक रहे हैं, उनका टाइम ज्यादा लग रहा है, सही है? सो उनका जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन इमोशंस आपने बनाने उसके थ्रू, सो वो जब आप देखते हो ना कपड़ा, फिर आपको समझ आती है, और वो आपको बोर भी नहीं करता, और वो इंटरेस्टिंग भी इसलिए करता है क्योंकि उसमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट थ्रेड्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी यूज हो रहा होता है। yeah, this is music, to be honest. I know for a lot of people who would watch it, this would sound like music, and for others it would be like, yeah, ज़्यादा technical हो गया. But I know this is I'm so yeah, it does sound like music, to be honest. It is just getting this emotion, and the way you even talk about your work, it's a पूरा मतलब पूरा full soul experience है. मुझे बताओ फिर, so launch happens with 6, but what is the launch? Is a launch getting a pop-up market? Is it launch Instagram launch? या क्या होता है? What is the launch? It was Instagram launch because we are a startup brand, or And startup, it's yeah। a Instagram launch on a page that was already working with the Vestige and all that, blah 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 करते करते कि हाँ वो था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आप कह लो कि एक्टिविटी नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि जब आप पॉज कर लेते हो ना कि अगर मैंने वेस्टेज को क्लोज किया या उस पर कुछ पिक्चर्स भी लगी रही है, बट आई देन जस्ट पॉज इट फॉर अ व्हाइल, और देन मैं अपनी जॉब करती रही, तो ऑब्वियसली ऑडियंस इंटरेक्शन कम होता जाता है। तो और यही एक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो मैं मुझे थोड़ा सा आई एम फीलिंग कि हाँ यार, एक वो जो एक प्रॉपर लॉन्च है, ऑब्वियसली बिकॉज यू नो कि बड़े ब्रांड्स के लिए लॉन्च करना, लॉन्च पार्टीज एंड ऑल, ब्लॉगर्स को बुलाना, को बुलाना, सेलिब्रिटीज को बुलाना, वो बहुत ईजी होता है, ठीक है? आपके लिए जो स्टार्टअप ब्रांड है, एंड ऑल्सो आई डोंट वांट टू engage everybody, आई वांट टू चूज पीपल हु रियली एक्चुअली रेजोनेट विद द आइडिया कि अच्छा यार ये क्या आर्ट पीस है, ये क्या बात है, इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा यार मैं सबको, पीपल डू अप्रोच कि अच्छा यार आप भेजो ये वो सारा, but it's just that you don't want to commercialize your product, na? That is why you, and I'm making that community, those people,
those kind of people who don't want their clothes to be worn by everybody else. कि अच्छा यार मैंने पहना है, 10 और लोगों ने पहना हुआ है, ठीक है, I want कि अच्छा हाँ एक स्टेटमेंट पीस है और वो स्टोरी है, और जिस तरह आप पेंटिंग अपनी बताते हो, बहुत प्राउडली बताते हो कि, और आप बड़े जो बंदा अपने लिए पेंटिंग अपने घर के लिए खरीदता है, वो बहुत उसको इंटरेस्ट से बताता है कि उसमें क्या हो रहा है. देयर आर नॉट लाइक ऑल ऑफ द पीपल जो आर्ट को उसी तरह से खरीदते हैं, ठीक है, कि अच्छा यार इसमें क्योंकि ये हो रहा है इसलिए मैं ये खरीद रहा हूँ. कुछ सिर्फ इसलिए लेते हैं कि अच्छा यार ठीक है चलो लगा दिया ये वो. सो आई रियली वांट कि I can build that community जो actually understand करेंगे इसमें क्या हो रहा है, जिनको वो intrigue करे the process कि क्या चीजें हैं क्या. तो launch इसलिए difficult था. Coming back to your point, launch was difficult. मैंने अपना फोटो शूट कराया, हम लोगों ने कैपिटल सारा जमा किया, मॉडल्स हायर किए, फोटो शूट हुआ प्रॉपर, सारा कुछ इंस्टा के ऊपर सारा वो हुआ, पीपल एडमायर्ड अस. लेकिन हाँ, Mashin was a game changer for us. I'm always very thankful to Mashin people for bringing up all the entrepreneurs or the right kind of audience, I must say. कि वहाँ पर people were coming जो वाकई who were admirer, और वहाँ पर एटलीस्ट अगर कुछ नहीं भी ले रहे ना, they were spending time. Definitely. They were spending time on every piece, it's and I think there's this concept of trust points as well. कि people, the research says roughly that people end up purchasing something once they have interacted with something for about 20 times. And वो 20 times में भी से अगर सिर्फ बिलबोर्ड पे देख लेना, अभी 1 काउंट होता है, लेकिन some of those interactions count as 5, 6, 7 because उसके अंदर you get to meet with the person as well. So I think what Mashin does is places like where people get to experience your brand. Yes, and good Instagram post, a good reel, blah blah blah, 1 plus 1 plus 1 plus 1 होता रहता है. But a place where they get to interact with the founder, वो suddenly the trust and the story and the full body experience that they get by trying out different things, all the way from apparel to lifestyle brands to food brands to home decor, so on and so forth, वो बहुत बहुत ज्यादा होता है. वो trust points में बहुत आगे ले जाता है. And of course different people at their own affordability in different timelines will end up becoming customers, but they get acquainted कि यार this is something that is back of our mind now. For the launch, क्योंकि but a lot of people have extreme high amount of jitters, लोग जज करेंगे भाई साहब. तो मुझे बताएं कि अस्का की स्टोरी में बहुत दफा ये phases आए हैं about the program that she wanted to choose or which university she wanted to go, but was it the same? Was there any high jitters, लोग क्या कहेंगे वाले elements, and all those elements in the launch time as well कि she is now coming up into the world with a reckoning force that brand name is Aska's, and उसके पीछे there was a lot of judgmental jitters as well कि तब तक overcome हो चुके थे. नहीं बिल्कुल, ये मैं अगेन वो इसी पॉइंट पे, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में इतनी कॉन्फिडेंट हुई नहीं कि मैं कहूँगी अब यार मैंने तो पता नहीं क्या तोप लेक कर ली. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं उल्टा ही सोच रही थी कि यार मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओवरडन होंगे कपड़े, कुछ लोग कहेंगे कि यार क्या बनाया है, मतलब ये क्या है, कौन पहनते हैं इतनी स्टोरीज वाले कपड़े और ये वो सारा, और मैं कैसे कन्विंस करूंगी. सो वो तो मैं तो अपने काम को खुद ही जज करना शुरू कर देती हूँ ना कि पता नहीं क्या, यहाँ पर ये हो जाता तो बेहतर था, यहाँ पर ये हो जाता. सो ये तो शूट के टाइम भी ना एक मेरा शक्ल का एक फेज आता है कुछ घंटे बाद, जब एवरीबडी स्पेशली लाइक पीपल क्लोज टू मी वो कह देते हैं कि भाई अब वो, इवन मैशन पे भी कुछ घंटे ऐसे होते हैं कि जब बहुत कम लोग आते हैं, या जब वो होता है कि या मुझे लगता है कि यार कोई राइट टाइप की ऑडियंस. और मैं अगेन वही बात करूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग क्लोथ्स, ठीक है, इट्स अबाउट के अंडरस्टैंडिंग वाला जो फेज होता है ना कि यार आपका होता है कि अच्छा कपड़ों को समझने वाला, तो कि पूछो तो सही कि क्या है, वो वाली बात ना कि क्या क्या था ये, वो वाली चीज आपके बीच में रह जाती है. जैसे आप होते हैं ना थीसिस करते हो, तो आपके जूनियर्स अगर कोई क्वेश्चन नहीं करते, आप कहते हैं काश ये वाला क्वेश्चन मेरे से करते तो मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना. तो वो चीज एग्जैक्टली आती है. और आप, आई थिंक इट्स अ बिग वो पॉइंट कि आप जजमेंटल होते हो अपने काम की. मैं तो बहुत हूँ कि मुझे बहुत हमेशा ये रहता है कि वो कहते कि अच्छा क्या ही कर लिया है, ठीक है. या नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है अच्छा कितना कमा लेती हो, ठीक है ना. या आपको इवन आपके बॉसेस भी कहते हैं कि अच्छा ये तो छोड़ो, कर लिया जो कर लिया, बताओ कि अर्निंग क्या है. तो आप बताते हो कि अर्निंग इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, ठीक है, हर फेज में आप स्टेप, इट्स अबाउट क्लाइंबिंग द लेडर, ठीक है. आखिरी पॉइंट पे क्या होना है मुझे नहीं पता, और आप हर चीज पे सीख रहे होते हो, डीमोटिवेटेड होते हो,
आज भी कई दफा ऐसा होता है कि आप कहते हो कि यार मैं जॉब ही करती रहती हूँ, Yeah. ठीक है, फिर आप 2 मिनट के लिए वो 1 घंटे का फेज आता है कि मैं देखो मैं जॉब कर रही थी, मेरी ये अर्निंग थी, मैं इतना अच्छा वो कर रही थी, मुझे ये प्रोटोकॉल था, यहाँ डिस्काउंट था, मतलब कितनी और Yeah. Yeah. चीजें आप सोच रहे होते हो। लेकिन फिर आप कहते हो कि यार जो आप कर रहे हो आप इंजॉय कर रहे हो, एंड ऑफ द डे यू आर एंजॉयिंग इट Wow. एवरी, कि मैं थक जा मतलब शूट पे, क्योंकि अब आई कांट अफोर्ड एक मैं प्रॉपर हर टीम के लिए चीजें वो करूं, मैनेजर हायर करूं, ये हायर करूं, ये हायर करूं, बिकॉज आई एम दैट पोजीशन, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माय ओन, एंड आई नो, एंड वन थिंग Which मोर, which I actually wanted to ask, from a very, very good job professional who's doing all the way reached up to creative director, जब खुद से अपना शुरू किया, then it wasn't just about making clothes. तब तो ये marketing भी हो गया, तब तो ये brand logo designing और storytelling of the brand भी हो गया as a writer, तब ये sales भी हो गया, finance भी हो गया, पता नहीं कितने ज्यादा और हो गए. So how that upskilling phase कैसा रहा लाइफ का? was there a structured upskilling के डेटा के साथ सीखते गए, कि कोर्सेज लिए नहीं लिए, किसी को साथ मिलाया कि यार तुम आके ये कर दो, तुम आके वो कर दो, जो 8-10 अलग चीज, बाकी चीजें भी तो होती हैं बिजनेस रन करने के लिए? अच्छा, लर्निंग प्रोसेस तो ऑब्वियसली आपका चल रहा होता है, आपको आप जॉब से बहुत कुछ लर्न करते हो, ठीक है, ये इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आप ये नहीं कि मैं निकलूँ, अच्छा चलो मैं अपना कुछ करना शुरू कर दूँ। जॉब इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है, एंड यू गेट टू नो अबाउट द सप्लाई चेन विच इज द बेसिक थिंग। किसी भी आपने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो आपको सप्लाई चेन की लर्निंग एक बड़े ब्रांड से आप लर्न करते हो ना, कि अच्छा क्या है और वो सारा, तो वो तो लर्निंग प्रोसेस वहां पर आप कर रहे होते हो। फिर आप लोगों से वही बात है, आस्क फॉर हेल्प, गाइडेंस, सीखते रहो, पूछो कि किस तरह होगा, क्या चीज होगी। और दूसरा ये कि देयर वाज नेवर अ थिंग अल्हम्दुलिल्लाह इनसाइड कि अच्छा यार मैं मेरा एक ऑफिस था प्रॉपर वो था, तो अब मैं अड्डे वाले के साथ जाके बात करूंगी, अब ये होगा। मैं उनके साथ जाके उधर बैठती हूँ, उनके साथ 3-3 घंटे बैठ के काम कराती हूँ, ठीक है, और तभी वो चीज आप निकाल सकते हो ना जो यू रियली वांट कि क्या है। तो उसमें मतलब आई थिंक वो तब आप बहुत सारी चीज लर्न कर रहे होते हो, ठीक है, उसमें फिर आप लोगों के बिहेवियर्स, उनको कैसे डील करना है, वो सारी चीजें कैसे, क्योंकि जब तक आप हर चीज में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, यू डोंट नो अबाउट द स्टफ एंड ऑल। तो दिस इज हाउ द No, लर्निंग, definitely. या। Askar, but of course, this was a difficult, like an artist. It's a difficult job. Every piece is curated with hand, and it took a lot of while. The 6 pieces, each piece takes a lot of time. But as an entrepreneur, जब आपके जेन में entrepreneur, एक आर्टिस्ट और entrepreneur मर्ज हो रहे हैं, तो entrepreneur थोड़ा स्केलेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा होगा, यार ये अगर मैंने 100 बनाने हैं तो कैसे होगा, 500 करने हैं तो कैसे होगा, at which so we are now in early 2023 जहाँ पे 6 के साथ launch हो गया with 6 pieces. Uh, how did you start tackling the phase of, let's say, scalability? क्या 10, 50, 100 कैसे होंगे, और वो which time period is this now? Is it still 2023, 2024, 2025? Let us walk you into your mind in this phase. It was after I mastered, we started thinking of scaling it up, right? Which year was this? And I think 23 or 24. My Okay, first, late I think, 2023 or early 2024. yeah. ठीक है. So yeah, I think late 23. Okay. So at that time when I first put up the stuff and it was like एक दो पीस थे, और तो वहां पर एक मुझे हुआ कि नहीं, अच्छा स्केलिंग अप में ये कि स्टिल आप उस अभी स्टेज पे नहीं पहुंचे कि आप बहुत बड़ी इन्वेंट्री बना लो, ठीक है, क्योंकि आप उसके साथ अभी वो नहीं कर सकते ना कि अच्छा बड़ी इन्वेंट्री बना ली तो अब क्या करना है, ठीक है, आपके पास जगह नहीं है प्रॉपर रखने के लिए, आपके पास प्रॉपर रिटेल स्टोर्स नहीं, आपके पास ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कर रहे हो सारा कुछ। उसमें दो फिर हम लोग उसको उस तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे मेड टू ऑर्डर हैं, पीपल गेट टू नो, आप विजिट करो, आप देखो प्रोडक्ट लाइव देखो, और फिर हम आपकी उसमें हम और उनके लिए ईजी कर देते हैं कि आपकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम उसको वो करें, बनाएं। दूसरा ये कि हमने कुछ साइज चार्ट्स ऐसे बनाए हैं कि वो दे आर नॉट वेरी पिटीट, कि अच्छा यार बिल्कुल, क्योंकि थैंक्स टू द ट्रेंड के ओवर साइज वैसे भी चीजें आजकल दे आर वेरी मच इन। सो हम मेरा कुछ जो
पीस भी थे. I started off with because I really liked that exaggerated shoulder padded statement quotes, and they were very much in trend. I'm talking about 23 when I started कि अच्छा यार silhouette क्या रखना है, चलो launch तो करना है, silhouette क्या होगा. So at that time I really liked runways के ऊपर कि बहुत like exaggerated और एक उस तरह के statement quotes के किसी भी size के बंदे ने वो पहने, it looked good, it give you a confidence और वो सारा. So that was the idea. और उसमें ये था कि हमने 2 sizes रखे हुए थे, that is like extra small, small, medium, large. So obviously वहां पर हमें बहुत ज्यादा कि जी हम एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक जा रहे हैं, वो भी चीज एक थोड़ा सा वो हो गया, कंट्रोल्ड हो गया. सो अभी हम उस तरह से ही चल रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा वो बहुत बड़ी इन्वेंट्री और बहुत ज्यादा वो स्केल अप करना वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि हमें कुछ होता है तो हम ये साइज चार्ट शेयर करते हैं कि ये है ये एंड विल हम उसको वो कर लेते हैं. Yeah, very smart decision. I think your entrepreneur in you taking these critical decisions. That one decision reduces so much of the workload down the stream, and one of those decisions was to target first with that kind of silhouette that is can be worn by many different body types. And second के medium small और extra small को अलग कर दिया, medium and large को कर दिया, and over time वही आपकी भी statement piece भी बनता जाता है चल के आहिस्ता आहिस्ता. So you reached that stage. So now, actually, I want to ask you to talk about the latest collection because when before the podcast we were talking about this as well. You really passionately talk about it, and I think right now it's in front of. Yeah. By the way, before you go about it, let me tell people. So, guys, firstly, as you guys can see, if you're watching it, if you're only listening it, then it's Aska Naveed Official, which is AZKA. NAVEEDOFFICIAL, Aska Naveed, and the Instagram page is a beautiful canvas in its own. So right now we have on our screens her latest collection, which she'll tell when it was launched, but we kind of have a very good idea looking at it when it will be launched. It's some amazing pieces here. So Aska, what is it we are looking at? What is this collection? So as I already mentioned, this is again जब आपका अभी मई में जब एक वॉर वाला आया था, फेज आया था, we all थॉट कि अच्छा यार कहीं ना कहीं एक वो जो पेट्रियाटिज्म वाला चीज है वो सबके अंदर दोबारा से मेरे मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो दोबारा से अंदर आई कहीं से, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोग डिटैच हो गए थे बिल्कुल उस फेज से कि जब हम लोग अपना जो अगस्त का पूरा एक फील था जो जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते थे ये सारा टाइम वो छोड़ दिया था सबने. और ठीक है 14 अगस्त आई, ठीक है जी छुट्टी हुई, सबने सो के गुजार दी. ऑनेस्टली सब यही होता था. हमने अपने बचपन में बहुत एंजॉय किया, हमने प्रॉपर उस फेस को झंडे लगाने से लेके कैंडल्स बाहर टेरेस पे लगाते थे और सारा टाइम हम बहुत मतलब ना सही एंजॉय करते थे कि अच्छा जी आज पाकिस्तान डे है. समहाउ वो उससे हम लोग हट गए और सारा कुछ हो गया. बट जब ये वॉर वाला टाइम आया तो देन आई रियलाइज कि यार लाइक तब आपको फ्रीडम एक्चुअली समझ आती है ना कि आप बड़े भी हो गए थे कि अच्छा यार ये वो टाइम था शायद जो दादा दादी बात करते थे कि वो जो खौफ की 2 रातें जो हमने गुजारी हैं कि पता नहीं सुबह क्या हो जाएगा, अच्छा ड्रोन आ गया, अच्छा ये हो गया. तो जब दादा दादी सुनाते थे तो लिटरली वो पूरा टाइम याद आ रहा था कि अच्छा ये अम्मी अबू कहते थे कि ये ऐसे पार्टीशन हुई थी, किस तरह ये हमने मुल्क लिया. उस टाइम आपको कदर आती है कि जो आर्मी है कैसे वो हमें बचा रही है, किस तरह हम. तो उस टाइम बहुत वो हिट हुआ था कि नहीं यार दिस इज ब्लेसिंग. ठीक है, आई वॉज अ पेट्रियाटिक पर्सन लाइक इन टर्म्स के आई नेवर वांटेड टू गो अब्रॉड. पता नहीं जब भी कोई बाहर जाने की बात आती थी मैं हमेशा इतना डर लगना शुरू हो जाता था, पता नहीं. और ये खुद ही से होता था कि मैं इवन अगर मैं कहीं इंटरनेशनली गई भी हूँ तो मैं आफ्टर अ वीक मुझे याद है कि मैं बोर होना शुरू होता है, मुझे लाहौर याद आना शुरू हो जाता है कि आई वांट टू गो बैक. ठीक है कि मैंने वापस जाना है. और ये शुरू से है. हालांकि 2 ऑफ माई सिस्टर्स आर लिविंग, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक स्वीडन में है, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी माशाल्लाह. लेकिन इट वॉज नेवर अ थिंग कि अच्छा यार मैंने जाना है. हाँ ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी कोई मजबूरी है या जॉब का कोई ऐसा होता तो फिर तो यू डोंट हैव ऑप्शन. बट मैं कभी उससे नहीं कि अच्छा यार मैंने उधर ही सेटल होना. पीपल डू हैव लाइक बीच में होता है व्हेन यू गेट disheartened by the political situation and all, और फिर आपको लगता है कि यार लॉ नहीं है ये नहीं होंगे. लेकिन फिर जब वो वाला सारा हुआ ना और जो सब इकट्ठे हो गए यूनिटी, और जिस तरह से लाइक
एवरीबडी ऑन सेम पेज। उस टाइम कुछ नहीं था, कोई किस पार्टी से है, कोई किस पार्टी से, सब एक पेज पे थे। तो मुझे हुआ कि यार मैंने कुछ, मतलब मेरे दिमाग में आया कि यार व्हाई डोंट आई डू समथिंग ना, क्योंकि मैं किस तरह एंजॉय कर सकती हूँ, मैं ये फील कैसे दोबारा अपने अंदर रिवाइव कर सकती हूँ। सो व्हाट मेक्स मी हैप्पी, डिजाइनिंग क्लोथ्स। सो आई जस्ट डिजाइन क्लोथ्स कि अच्छा मैं ये करूंगी। फिर मैंने कहा कि यार दादा दादी ने मुझे ये सारी चीजें बताई थी, मैं उधर ही चली गई, लाइक गोइंग बैक टू रूट्स कि अच्छा लिटरली मैंने सोचा कि अच्छा अम्मी वो पूरा बता रही हैं कि किस तरह से वो आए थे, अब्बू मेरे दादा बेयरफुट आए, किस तरह से वो सारा हुआ। तो और मैं उस टाइम मुझे थोड़ा सा एक डर भी लगा कि अच्छा यार मैं अपने बच्चों को ये चीज कैसे कन्वे करूंगी, ठीक है कि मैं, हम लोग तो इतना अपनी लाइफ में गुम है कि मतलब हम शायद दादा दादी भी बार बार सुनाते थे, हम बोर हो जाते थे कि अच्छा हाँ ये तो सुने, अच्छा अब इसके बाद ये हुआ था, अब इसके बाद ये हुआ था, हमें बिल्कुल स्टोरीज याद थी। लेकिन वो सही किया था उन्होंने, क्योंकि उस चीज ने हमें कनेक्टेड रखा था अपनी अपने पाकिस्तान के साथ, या फ्रीडम और ये वो। और इस कैंपेन का मतलब ये था कि इट शुडंट बी सेलिब्रेटेड जस्ट फॉर अ डे, ठीक है कि आपने सिर्फ 14 अगस्त को नहीं, छोटी छोटी चीजें आपको पूरा साल सेलिब्रेट करनी चाहिए। और क्योंकि और बहुत कुछ है मीडिया पे, अब सिर्फ यही होता है कि कितना बुरा हो रहा है, तो जो अच्छा हो रहा है या कुछ अच्छी चीजें, आई थिंक उसको भी करके आपको पॉजिटिव भी रहना चाहिए, ठीक है, एंड ऑफ द डे आपकी कंट्री है। तो खैर उसमें फिर मैंने, मेरे पास टाइम कम था, मई की बात है ये, और मैं मुझे था कि मैंने अगस्त से पहले पहले ये करना है, ये डिजाइन भी होने थे, फिर उसका सारा किस तरह से उसको हम फिर 90s का म्यूजिक, आई वाज लाइक मैं ग्रोइंग अप टू दैट म्यूजिक, आई स्टिल रिमेम्बर हम उसके आगे बैठ जाते थे टीवी के आगे कि अब 6 बजने वाले हैं, फलाना शो आना है, ठीक है। और वो कुछ बहुत ज्यादा फेवरेट वीजेस होते थे कि अच्छा फलाना वीजे आ रहा है, अच्छा ये हो रहा I है, अब ये हो रहा है। know. तो Yeah. वो उस टाइम वो फेज और जो आर्टिस्ट उस टाइम जो हमारा पॉप म्यूजिक था, मुझे अभी दैट वाज द बेस्ट टाइम, आई थिंक बहुत मजा आया था तब वो मजे का टाइम था बहुत। फिर मुझे था कि वो गानों को हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ आई जस्ट डिजाइंड इट, देन फिर वो पूरा प्रोसेस, फिर मुझे सारा कुछ मतलब मैं खुद वो जल्दी जल्दी कि अच्छा कलर ह्यूज किस तरह से हम ग्रीन्स के उसको बैलेंस करेंगे, चीजें स्क्रीन प्रिंटिंग कुछ की, कुछ आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चर उठाया पाकिस्तान का फेमस हिस्टोरिकल जिसको हम Mm. कनेक्ट करते। सो दिस इज हाउ यू नो आई मेड द थिंग्स। Yeah, when you talk about what goes in your mind as an inspiration, वो almost goosebumps moment हो जाती है for those, especially when you mentioned the TV के सामने बैठ जाना and some of those VJs. So मुझे एक वकार होता था, आई रिमेम्बर, एक आई थिंक मायरा खान भी नई नई आ गई थी एज अ वीजे, पर बट वकार मुझे लगता है म्यूजिक चैनल होता था, या शायद द म्यूजिक चैनल होता था, पता नहीं, सब म्यूजिक MUSIK लिखा होता था उनका, बड़ा मजा आता था। So all that, it's beautiful to see how what goes in the mind. But as we were looking at Instagram, कि अब ये more than jackets हो गया है. So between 2023, early 2024 to now, what are all? And I also saw footwear as well in the on your Insta. So now when a campaign comes in, or outside of the campaign as well, what are all the things that people can, let's say, interact with Ascout, purchase with from Ascout? क्या क्या आता है within the brand of Ascas? So every collection, each collection, I try to make accessories too. Like there are clothes. Obviously, keeping up. आपका अभी मौसम क्या चल रहा है? This is one of the important part because I cannot make codes right now. Or also the most important thing is the theme. What theme are you picking? It should resonate with the theme. The 90s kind of time है. So I also made sari for the first time. That with the puffy sleeves, with that collars and all. कि अच्छा 90s का जो time था, was like light chiffon and तो वो एक मतलब कलेक्शन के जो पीसेस है उसको ऑब्वियसली कनेक्टेड रहना चाहिए विद आपके एग्जैक्टली ये वाली तो आपकी थीम के साथ। सो इवन आप अगर इसका टीजर देखो उसका जो फील है वो आई मेड श्योर कि मैं उसी तरह से लाइक आई फाउंड अ प्लेस, अ ब्यूटीफुल प्लेस इन अंदरूल लाहौर। तो वहां पर हमने उस तरह से उसको शूट किया और मेरे दिमाग में था कि जब ये गाना और एग्जैक्टली ये था कि ये इस गाने का म्यूजिक होगा और वो सीढ़ियों से ऐसे जा रही होगी और वही फील आनी चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि फोटोग्राफर एंड द वीडियोग्राफर पुल्ड इट ऑफ। तो yeah, this is how, and we kept the things raw actually। जिस तरह ये 1947 का आप टैग देख रहे Yeah, हैं, इसको beautiful. हम This is इसको हम this is इंटेंशनली incredible. जो है ना रॉ रखा,
ठीक है, just No, to I can see that. yeah. Aska, and now you are also, are you crafting even your marketing and your mood board and all these things as well, as a mind behind these, because this itself is now turning out to be beautiful product. How your the color hues that you have kept, the texture that you have kept. So how much you get involved in this work as well? Because the moment I think about a theme, I always get ideas from different things. Most of the time is from music. कि Okay. अच्छा गाना क्या है? हारून का गाना जो है ना दिल से, वो मुझे बहुत पसंद है एज़ अ Hmm. अगर आप नेशनल सॉन्ग्स में करें तो सारा। सो मैं जब मतलब लाइक जब मैं सोचती हूँ ना कि अच्छा यार मैंने ये थीम करनी थी, तो उस टाइम आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम Right. आपका दिमाग उस टाइम होता है कि अच्छा मुझे ह्यूज़ ये चाहिए। आई डोंट वांट कि सिर्फ ग्रीन हो, व्हाइट हो, ग्रीन के ह्यूज़ हो, ठीक है? Hmm. वो आपके आपके पास वो नहीं है। यू कैन ऑलवेज़ यूज़ डिफरेंट ह्यूज़ ऑफ ग्रीन। अगर आई डोंट नो अगर मेरे पास यहाँ पे वो है, तो मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से हम उसको एक से दूसरे कलर में जा रहे हैं और सारा। और सेम गोज़ फॉर द सिलुएट्स एंड ऑल कि अच्छा वो तो मतलब वो दिमाग के अंदर होता है कि आपने किस तरह से वो करना है और सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इवन ये भी बात दिमाग में आ जाता है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट बन गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको इसके पीछे किस तरह का म्यूज़िक चलेगा, मुझे किस तरह का आर्किटेक्चर चाहिए एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं ढूँढ लूँ वैसा कुछ। कि Hmm. हम 1 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड ने जाके सिर्फ अंदरून लाहौर को हंट किया, वज़ीर खान मॉस्क के पास। और वो Yeah. फॉर्चुनेटली हमें पीएफडी की 2 बहुत अच्छी बिल्डिंग्स मिल गई जो उन्होंने रेंटेड ली हुई है फॉर ताकि उन्होंने Okay. उन्होंने लाइक अपने स्टूडेंट्स का वहाँ पे काम जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है, सेरामिक्स का एंड लेदर का और सारा। सो दैट वाज़ लाइक वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी का वहाँ पे वो हो गया, तो दैट वाज़ सम That, वी फाउंड सम yeah. गुड स्पॉट्स देयर। देन देयर आर अदर ये जब आप एक दफ़ा चले जाओ तो वहाँ पर तो फिर पूरा मूड ही बन जाता है ना, वहाँ तो Uh, अंदरून लाहौर में तो फिर ऐसे वही है। हाँ नहीं, I visited I think latest in 2023. So from when you enter from the Delhi Darwaza side, तो गली सूरजन सिंह से शुरू होती है, बड़ी जबरदस्त जगह। और फिर आगे वजीर खान मॉस्क तक बड़ी जबरदस्त है। फिर आगे दूसरी साइड बादशाह मस्जिद की साइड पे भी एक आध बड़े मजे मजे के बल्कि काफी आई थिंक कोई हेरिटेज स्टोर्स भी आना शुरू हो गए हैं। इट इज गेटिंग प्रीटी। अच्छा, कमिंग टू द एंड, आई नो वी हैव टेकन योर मोर देन एन आवर ऑफ योर टाइम। मुझे आप I want to show you the footwear हाँ because अभी आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल the kind दिखाओ। of foot. So so this was the bag, right? Yep. I hope it's clear. Yep, ठीक है, it's absolutely जिसमें आपको the birds always आपको जो मुझे तो हमेशा पीस और wow. कामनेस और उस चीज को फिर आप चांद सितारे को कैसे इनोवेट कर सकते हो ना। आई लाइक हार्ट मोटिव अ लॉट, Yeah. हार्ट स्टार्स वो आप कैसे कर सकते हो। सो दिस वाज लाइक इस Oh wow. तरह से कर, Oh ठीक है। wow. सो दीज आर द What? लिटिल डिटेल्स एंड आई ऑलवेज लाइक कि अच्छा एक सरप्राइज एलिमेंट कस्टमर के लिए जरूर होना चाहिए। मे बी इनसाइड किसी कुर्ते के पीछे छोटा सा मोटिव, Okay. सरप्राइजेस कस्टमर, अच्छा ये भी था, अच्छा ये देखो ये भी था। Yeah, और oh wow, wow, wow. What a psychology right there. मुझे Beautiful. बचपन में ये चीजें बड़ी एक्साइट है, कुछ आपको Beautiful. मिलता था ना कि अच्छा ये भी चीज थी, तो I आई थिंक कस्टमर को ये मुझे बहुत मुझे मुझे आपने ये बोला है तो फॉर द फर्स्ट टाइम इट हिट्स के व्हेन समटाइम्स जोया माय वाइफ एंड शी इज बाइंग समथिंग एंड उसके बाद उसको नहीं पता होता और बाद में जाके उसमें एक पॉकेट निकल आती है, सीक्रेट पॉकेट। शी इज लाइक ओह माय गॉड, ये पॉकेट भी है। That oh my god, that extra win of pocket. And now when we're talking about it, every time Steve Jobs used to do launch of any of Apple product or launch, उसके पूरा खत्म होने के बाद एकदम स्लाइड आती थी and one more thing, and one more thing was always out of the Apple key universe, but it became a thing in its own. So I think for the first time ever, somebody has made us realize कि what is that thing, that when a customer has already gotten whatever they wanted to get, but they get that one small little surprise there, it has a different vibe to its own. Yeah, and again we were talking about the silhouettes क्योंकि एक बड़ी एक ethnic सी हमारी theme थी, very close to our culture and all. So I made these kolhapuris for these are leather made और इसमें भी I try कि अच्छा यार थोड़ी सी different हो और leather हो, embroideries ना हो, एक comfortable चप्पल हो, उसमें हमने padding add की कि आप walk करना आसान हो जाए। So we use these things. So ये little details है और ये again उसमें silhouettes क्या decide करने हैं वो totally उस time जब when I'm working on a theme और उसके ऊपर तो वो उसके accordingly I plan all the things.
Aska, पहले तो thank you for doing something out of the conventional green and white, because the way you have added pink hearts and the Yeah. pink in your birds as well, बहुत मजा आया देख के भी. Uh, Thank you. I Thank you so much. want to ask last Yes. two, and it could be very rapid fire as well. It could have a story as well behind them, and that is number one is throughout this journey of entrepreneurship. It could be 4 years, 5 years, or 2 years, wherever you want to take it. You want to take it from the Aska or before that. Uh, a favorite failure. And when I say favorite failure, it should have hurt at that time a lot. It's like, yeah, shit, ये बड़ा गलत हो गया. This was a setback that kept you uh, uh, stressed up for some time as well. But looking back now, it has some learning value. And then on the second part, we will end that with a favorite win, and that could be up from the first customer to one event or launch. We'll talk about the win at the end. So, what comes to mind is a favorite failure? Uh, uh, Favorite failure was, I think, it wasn't a very big. वैसे था बड़ा failure ही था. हम लोग का कराची में हुआ था, and we went there. और बड़ा मैं like वो again जो मैं आपको कहने लगी कि for the first time I felt confident कि नहीं अच्छा होगा, कि कराची की आवाम तो कराची लाहौर का हमेशा मसला ही चलता रहता है. तो like I have like very good friends from Karachi, and I was like यार अच्छा रिस्पॉन्स होगा, और वहाँ पर तो सेलिब्रिटीज भी ज्यादा हैं और ये वो सारा कुछ. तो मैशन तो कराची का तो फिर मतलब रूट्स तो वही है मैशन की. सो आई वेंट देयर और प्लेटफॉर्म लिया और सारा कुछ. द रिस्पॉन्स वाज लाइक, मतलब मुझे याद है हमारे सामने कलेक्टेड का था और सारा, तो हम सब यही बात कर रहे थे कि यार क्या हुआ ये ना. दैट वाज बाहर गए, इतने पैसे खर्च कपड़े चीजों पे किस तरह से, और फिर सामान जैसे कार्गो करवाया वो इतना मुश्किल. फिर वहां पर जगह ली प्रॉपर, क्योंकि वहां पर कोई लाइक ऐसे रिलेटिव नहीं था या कोई जगह जो उसके बिल्कुल करीब मैशन जहां पर हो रहा था वहां पर कहीं नहीं थी. तो द 2 days वर लाइक, मैं तो मतलब वहां पर वकास मैं तो मुझे इसलिए समझ नहीं आया कि ये क्या सेटबैक था, ये हुआ क्या. मतलब और बार बार आप अपने आप को कहते हो ना कि यार कि मैं गई क्यों, ठीक है, कहते क्या इतनी मजबूरी थी कि. लेकिन उसके बाद ये हुआ, आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, माय कस्टमर्स के. उन्होंने कहा कि यार आपको ना हमने कराची वाले मैशन में देखा था और तब से हम आपको ढूंढ रहे थे क्योंकि आपका काम हमें बड़ा अच्छा लगा था. अब वहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब जिस मैशन में कॉन्सर्ट होता है ना, वो थोड़ा सा हम लोग के लिए ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी लोग इस माइंडसेट के लिए आते हैं कि दे आर गोइंग टू अटेंड द कॉन्सर्ट. और बहुत सारे वो लोग जो बाइंग पावर है, ऑब्वियसली बच्चों के पास इतनी बाइंग पावर तो नहीं है ना, उनके को बड़े लेके दे रहे होंगे. तो उनका ये माइंडसेट होता है कि अच्छा कॉन्सर्ट है तो ज्यादा बच्चे और टीनेज ज्यादा गए होंगे, तो चलो हम अवॉइड करते हैं. जो हमारा जो मैशन रमजान में होता है ना, उसमें हमें बहुत फायदा होता है, उसमें कॉन्सर्ट नहीं होता. तो उसमें पीपल आर कमिंग विद दिस माइंडसेट कि अच्छा शॉप भी करते हैं ना, और ज्यादा खवातीन इस तरह से आती हैं. तो मे बी दिस वॉज वन ऑफ द रीजन. बट आई गेट टू मीट फ्यू सेलिब्रिटीज देयर. वो मेरा एक अच्छा वो था. अच्छा वो जब मुझे लोगों ने अप्रोच किया, दे एक्चुअली गॉट माई स्टफ. मैंने कराची उनको शिप करवाया. और फिर मुझे समझ आई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था वहां जाना. ठीक है कि आप कराची में आपकी मार्केट बनी ना, पीपल गेट टू नो हर चीज. आपको वही बात है कि फॉरन नहीं मिल जाती ना, कि आप वहां पर गए तो मैं कहती कि अच्छा आप भी निकल जाते कपड़े, अभी लोग वो कर लेते. प्रोसेस होता है, और अगर आप वही अल्लाह ताला ने अगर उसमें लिखा हुआ था तो मैंने जाना था और ये प्रोसेस होना था. और फिर इतने महीने बाद मैसेजेस आ रहे थे, और फिर अच्छा. और मुझे ये भी था कि अच्छा ये मुझे अभी तक याद रखा हुआ, इन्होंने इनको पता था. क्योंकि वहां पर तो आपने देखा होगा, आप यही कंसिडर करते हो कि इट्स जस्ट अनदर स्टॉल, ठीक है, कि वहां इतने सारे लोगों का स्टॉल होता है. ऐसे तो but for all of you who are listening and watching as well, I think this story has a lot of insights as well, and that insight is about the long tail of your interaction with people. The long tail is के 2 दिन का event है, किसी ने आपको आके देखा है, chances are probably 10% of them will end up being your customer on that day, or 20% based on whatever the product is. But the long tail is कि those people will continue to know about your brand, and maybe 4 months later कोई और कहेगा यार मुझे आज एक ब्रांड का पता चला है, उनका नाम है अस्काज, आपको पता है उसका, फिर कहेगा यार हाँ मैंने वो वहां पे देखा था. एंड देन जब वो एक सेकंड कनेक्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा कि मुझे उसके बारे में पता था लेकिन अब किसी और ने भी रेफर किया है, सो सडनली दे विल बी लाइक अच्छा यार आई वांट टू ट्राई देयर थिंग्स. So वो जो लॉन्ग टेल एलिमेंट है that we see across different businesses when we study is
is almost 80% of total sales over a lifetime period. So I think all these things that you do, and you've done this in Karachi, it will have a lot of compounding effect over many, many months and years, and continue to have it over the lifetime. And your favorite win? A win Yeah. जहाँ पे अस्का का जहाँ पे अस्का ने ना बोला हो what if कि उसका उसका कोई नेगेटिव एलिमेंट ना निकला हो. फेवरेट वेन एक ये थी ये भी मैशन की बात है कि अभी लाइक मेरा ज्यादा इंटरेक्शन अपने कस्टमर्स के साथ मैशन पे ही होता है. One was when my sister was accompanying me जो लास्ट मैशन हुआ था रमजान वाला, उसमें उसने कहा कि दैट वाज कि बहुत एक मुझे अच्छा लगा जब एक कस्टमर ने कहा कि तुम्हें पता है इस ब्रांड का. उसने कहा कि हाँ आई नो इसका स्टफ बहुत डिफरेंट, ये बड़े डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं इसके, यू नो इसका तो ये हाँ ये इसके मैंने लास्ट ईयर देखा था इसके बहुत डिफरेंट होते हैं. तो हम अपनी फलानी दोस्त को लेके आते हैं और लेट्स कम अप और फिर मिलके देखते हैं कि अच्छा क्या है, कि अच्छा मतलब सिर्फ रिकग्नाइज कि अच्छा यार रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये क्या है. और सेकेंड वेन वॉज व्हेन अ फॉरेनर विजिटेड my stall and she was with a Pakistani uncle के साथ थी वो, and she liked one of my coats from the 23 collection, and the way she got excited seeing that gray coat, and she was like कि मैं I'm buying this and I don't know this has something, oh, and each and everything the way she was admiring each and everything. जिस तरह वही आप कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसे आप पेंटिंग की एक एक चीज को डिस्कस करते हो, फिर आप पूछते हो कि अच्छा ये क्या था ये क्या था, वो करते करते she was like कि so I'm getting this, और फिर ने कहा कि अच्छा क्या मतलब मेरे थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछा. I told her कि अच्छा मैंने तो अभी स्टार्टअप ब्रांड है. उन्होंने कहा कि डोंट वरी हनी, यू दिस कोड इज गोइंग all the way back to New York, and I'm telling all my friends कि तुम कितना अच्छा काम कर, how passionate you are और सारा. And then मैंने उनको एक सर्टेन अमाउंट दिया. कहाँ पर खवातीन आके मुझसे कहें ये ज्यादा है ये भी है, वहां पर आपको लगता है शायद मे बी मैं बहुत ज्यादा आई एम चार्जिंग, वहां पर उसने मुझसे कोई वो नहीं किया. She just paid and she wore it in front of the mirror, and she was like, to see a customer being happy in your piece while wearing it, like she was actually enjoying it. कि मतलब इधर से देख रही है मेरे हमेशा प्लेटफॉर्म पे मिरर मैंने रखा होता है कि आप देख लो कि कैसा लग रहा है. She was like having fun. She was enjoying it. I think that was one of the. Oh wow! Oh wow! In in a uh, in a way, I think when somebody who shares the same spirit as you do about the things that you do, for them it's not a thing they're buying. It's a full experience where it's like for them it's like playing their favorite game because they enjoy it as well, and such a beautiful, and I pretty much kind after you shared this story मुझे लगने लग गया कि ये इसके लिए I know a lot of such stylish women across the world who resonates with this kind of style as well, and I think over time there's a very high chance that a large market will become outside of Pakistan, and as always we in Pakistan will be celebrating your wins when when it goes outside of Pakistan. Also, It's such a through your platform, I really want to convey this that at this 14th August, even we were making some of the men's product because a lot of men's boys came to my Mashan and they really appreciated, and they actually gave me orders कि हाँ यार इसमें हमें भी बना के दो, because some of the pieces were unisex. So for the first time, for the 14th August collection, I made that thing for the gents and all. और उसमें भी मेन यही था क्योंकि obviously इंस्पिरेशन वॉज पीछे कायदे आजम एंड फातिमा जना की तो पूरी जो शेरवानी स्टाइल में जो प्रॉपर वो पहनती थी, आई मेड श्योर टू यूज दैट सिलुएट. सो बट एट दिस मोमेंट मैंने जेंट्स की प्रॉपर एक लाइन जिसमें मैंने 2-3 कुर्ते एंड आई वांटेड कि अच्छा वो क्या डिफरेंट, अगर आप कुर्ता पजामा पहन रहे हो आप क्या डिफरेंट कर सकते हो, मे बी यू कैन प्ले विद द ह्यूज टाई एंड डाइज, वो आप एक वाइट सलवार कमीज उसमें आप क्या डिफरेंट कर सकते हो. सो आई ट्राइड मेकिंग दैट कि अच्छा यार कूल स्टफ आप कैसे उसमें वो कर सकते हो. आई नो मे बी शायद कुछ को सही लगे कुछ नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो वाली मार्केट भी फर्स्ट टाइम मैंने टच की इस कलेक्शन से. Yeah, nee, that is absolutely amazing. And also tell everybody else ताकि हम उसके बाद show notes के अंदर भी लिख लें where all the places where people can find you now. अभी almost September हो गया 2025 का, September October, फिर आगे December तक है, फिर Jan Feb है.
फिर रमजान है, मे बी एक और मैशन आएगा, बट लुकिंग एट दिस नेक्स्ट 6 months, कहाँ कहाँ लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 months? Okay, so one thing is because obviously Insta pay, I am like we are very responsive on Insta. We are working on our website. It has my minor issues, but it will be working from. It will be live from like inshallah few days, in few days. और इसके अलावा we are trying to open our studio for like हर week में एक या दो दिन open करेंगे for our customers कि वो आए आके कपड़े देखे और वो do have walk around, have tea, have coffee, have a chit chat with us और आके वो enjoy करके अच्छा यार क्या बना रहे हो. Then we are in conversation with few of the platforms जो different retail brands को एक platform provide करते हैं. There is a small you can say a thing where जो जहाँ पर ये पूरा उन्होंने who are interacting with their different retail brands और we are in conversation with them और उनके साथ हम अभी देखते हैं कि कब चीजें finalize करते हैं. Once it's all finalized, I'll obviously post for my customers over there. और बाकी यार इंस्टा में वी आर ऑलवेज अप फॉर लाइक इंस्टा, और अभी जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, कलेक्शंस हमारी आती रहेंगी और वो हम इंस्टा पे पोस्ट करते रहेंगे. और क्योंकि अभी रिटेल स्टोर्स और वो इज लाइक थोड़ा सा इट्स टू अर्ली फॉर अस एज अ स्टार्टअप. बट यार हम स्टूडियो विल बी ओपनिंग लाइक फॉर 2 days अ वीक होगा जिसमें आप यू कैन कम एंड यू कैन सी थिंग्स एंड स्टफ आप. And in terms of pop-up market, Mashin और हरियाली भी आता है कि सिर्फ Mashin ही आता है? This time I have applied for Haryali, but see the thing is we are dependent on these platforms for obviously they have to approve our applications and they approve each time. So yeah, I have applied for Haryali and I'm hoping for coming November. I think yeah in November में है. और for Mashin यार जो pop-ups तो बीच में कोई भी आएंगे, I don't want to miss any pop-up. Because and what about other cities? Islamabad, Karachi, any other in your cards right now? Not yet. Maybe like in future. Maybe Islamabad, maybe next time. But not Karachi. I don't know. Not Karachi for now. Yeah. Not good. Aska, of course, we are here for you. We're celebrating your wins. Thank you for taking time out, sharing all this beautiful story. एक तो आपका storytelling इतना बिंदास है. I think that उसकी वजह से पता भी नहीं चला 1 घंटा 20 मिनट कुछ 100 मिनट हो गए पॉडकास्ट पे, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग ही इतनी बिंदास है कि पता ही नहीं चला, टाइम फ्लू बाय. एंड आई मीन इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस. Everybody who watched it, taking it as a case study, listening to it in audio, do check out Aska Naveed Official on Instagram. Whenever you see her in any of the pop-up markets in your city, could be Mashin, Harry, or whichever, stop by, interact with her products, tell her that you have heard her story and you know where she's coming from, and see if you see the same spirit in it, and of course purchase it and share it with your loved one, gift it. I've seen the product, they're beautiful, they form beautiful gifts as well for your loved ones. But most importantly, I hope she inspired you guys as well to follow your passion. And your passion is this. It's lingering out there in the weekends, in your childhood, in the time that you feel like you want to recharge with that thing. ये यहीं पे कहीं लिंगर कर रहा है, उसको ढूंढें, follow करें. You guys, Aska is making New Pakistan. You guys are the people of New Pakistan. जो हम हमेशा कहते हैं, New Pakistan is gonna be more community first. It's gonna be belongingness first. It's gonna be bottom up. हम लोग सारे ही बनाएंगे. और हम पिछले 4-5 साल से काबिल पे आपने काफी ज्यादा और फाउंडर्स की स्टोरी भी सुनी है, who love hanging out with each other, who love making great stuff, and we love interacting with these brands as well. So wherever you find the podcast, in the show notes you will also find her link to her Instagram channel, and all the others that open up we will keep sharing with you guys. Aska, thank you so much for your time. Thank you, Akash. Thank you so much for having me.